इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है पंजाब और हरियाणा की खबरों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दूरी में मौजूद धर्मपुरा महल के निवासी पिछले कई महीनों से गंदे पानी की निकासी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि मोहल्ला निवासी अपने बच्चों को गंदे पानी से ही स्कूल छोड़ते हैं। दरअसल उनके मोहल्ले में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। इस मामले पर धर्मपुरा महल के निवासियों ने इकट्ठा होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और धूरी लुधियाना हाईवे पर मलेर कोटला बाईपास को जाम भी कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने हाथों पर धर्मा रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मोहल्ले वासियों ने कहा कि जब तक हमारे मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं होता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब हमने इस पूरे मामले पर नगर कौशल के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई नहीं हो पाई, लेकिन जल्द ही इसका समाधान भी कर दिया जाएगा, ये अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 10 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਧੂਰੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਏਡੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਸੱਪ ਜੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਟੋਭਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਦਲਦਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਜੇਈ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਡੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਦੇ, ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ जी, साढ़े सारे बच्चे बीमार ने। बठिंडा के एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के संबंध में एसपी जसमीत सिंह साहिवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सुबह करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि पक्का कला गाँव में फायरिंग हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि घर में आपसी झगड़े के चलते पति ने पत्नी पर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई और एक अन्य महिला के बयान के आधार पर अपराधी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने रेड कर एक घर से 116 घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद कर घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालने के अवैध धंधे का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फूड सप्लाई विभाग के साथ संयुक्त रेड कर मौके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सिलेंडर से गैस निकाल खाली सिलेंडर से भरकर अवैध धंधा चला रहे थे। पटेल नगर में कुछ सिलेंडरों से गैस चोरी करके अवैध रूप से बेची जा रही है। जिस सूचना पर संबंधित विभाग से संपर्क करके अफसरान वालों को बतलाकर टीम इकट्ठी करके रेड की गई। मौका पर
एक व्यक्ति सुरेंद्र नाम से मिला जो मशीनों के द्वारा सिलेंडर से बदले मार रहा था गैस का, उसका मौके पर काबू किया गया। वह कार्रवाई की जा रही है। सिलेंडर की संख्या कितनी? 116 है टोटल। किस कंपनी के हैं? भारत गैस से हैं, कमर्शियल हैं, उसमें कुछ घरेलू हैं, कुछ छोटे हैं। आज मुझे सूचना मिली पुलिस चौकी करधान से कि पटेल नगर के अंदर बीडी फ्लोर मिल के पीछे कोई मकान के अंदर अवैध रूप से सिलेंडर का कारोबार कर रहा है। इस पर मैं पुलिस चौकी करधान में आया और यहाँ से चौकी इंचार्ज के साथ ज्वाइंटली हमने पटेल नगर के एक मकान में रेड की, जहां पर मौके पर एक व्यक्ति सुरेंद्र नाम का सन ऑफ अतर सिंह निवासी बैंक कॉलोनी अंबाला कैंट का था, मौजूद था वहां पर। और मौके पर लगभग 116 सिलेंडर, जिसके अंदर कमर्शियल 46, 26 भरे 20 खाली, डोमेस्टिक 50, 45 भरे 5 खाली और 5 किलो वाले 20 सिलेंडर 18 भरे 2 खाली, कुल मिलाकर 116 सिलेंडर मौके पर पाए। पटियाला के स्ट्रीट क्लब पर अज्ञात लोगों की तरफ से बाउंसर के ऊपर गोली चलाने के मामले में पटियाला पुलिस ने 4 लोगों को और एक अवैध हथियार सहित बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इसकी जानकारी पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने दी। मीडिया से जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि पटियाला के स्ट्रीट क्लब में बाउंसर पर हुए हमले को लेकर 12 घंटे में पुलिस ने 4 दोषियों को गिरफ्तार किया और उनसे एक नाजायज असला भी जो है उसे बरामद किया। वहीं एसएसपी ने पटियाला का माहौल खराब करने वाले शरारती लोगों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पटियाला का माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ पटियाला पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਉਂਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब में CASO अभियान चलाया, जिसके चलते अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कामयाबी हाथ लगी। असल में नशे को खत्म की मुहिम में अब तक NDPS एक्ट के तहत कुल 883 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1655 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 190 किलो 905 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। इसके साथ ही 2 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़्यादा के ड्रग मनी के भी जब्त किया गया और पुलिस का कहना है कि प्रवर्तन के साथ उपचार और सामाजिक जागरूकता भी ज़रूरी है। वहीं इस साल की बात करें तो कार्रवाई साबित करती है कि नशे तस्करों के खिलाफ जंग पूरी तरह से ताकत की ओर चल रही है। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ, ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 863 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ NDPS ਤਹਿਤ, 1655 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, 190 ਕਿਲੋ 965 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਟੈਬਲੇਟ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ 2 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 61,665 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। 81 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 99 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। 105 ਪਿਸਟਲ ਓਬਲੀਕ ਮਾਊਜ਼ਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, 7 ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੇ, 1 ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
भिवानी में हुई महिला टीचर की हत्या का मामला प्रदेश में काफ़ी हाईलाइट हो गया है, क्योंकि पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके चलते विपक्षी पार्टी सहित आम जनता और अब तो स्टूडेंट संगठन भी इस इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार और प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को पकड़कर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। आगे उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मनीषा नाम की बहन जो एक 19 वर्षीय शिक्षिका थी, जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई तो प्रशासन ने यह कह के पारित कर दिया गया कि शायद भाग गई होगी। फिर जो 13 तारीख को उसकी सिंघानिया नहर के पास खेतों में शव मिला, उसके आधार पे जब रिपोर्ट लिखवाई गई तो आनंद फानन में प्रशासन ने एसपी जो नरेंद्र बिजारनिया थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद जो और भी सस्पेंड हुए थाने में भी और मेडिकल में भी छात्र संगठन इकट्ठे हुए हैं। देखिए जी, ये बहुत आज एक मॉडर्न ज़माना है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी मॉडर्न ज़माने में भी जो दोषी हैं 11 तारीख का ये मामला है, अब तक पकड़े ही नहीं गए। 11 तक अब मामला इतना संगीन मामला ये भी, उसका मर्डर तक कर दिया गया। जैसे 11 को रिपोर्ट करवाई गई, उनका शव मिला 13 को, उसके बाद भी आज तक उनके घर कैसे धक्के खा रहे हैं भी, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आज भी हम न्यूज़ में देख रहे थे, जैसे उन्होंने आज हाईवे जाम करे, कभी कुछ कर रहे हैं। इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला खास तौर से उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा आपको बता दें किस तरीके से पूरा मामला जो है वो रहा है और बीजेपी के ऊपर उन्होंने हमलावर होते हुए कई सारे आरोप लगाए। आपको बता दें तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे। तो टिकटें बांटी जा रही थी तो उससे 10 दिन पहले ईडी की तरफ से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के यहाँ पे रेड मारी गई थी। जब रेड करी तो उस रेड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई। हुड्डा के खिलाफ जैसे ही FIR लॉन्च हुई, हुड्डा साहब ने उसी वक्त बीजेपी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया और बीजेपी के नेताओं से मिलकर के पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने हुड्डा के सामने शर्त रखी कि जो 30 MLA तेरी पार्टी के मौजूदा है, इन 30 के 30 को फिर से टिकट दिलवा है। ये आप मान के चलो, चाहे कोई भी पार्टी है, MLA एक बार तो बन जाता है, लेकिन MLA बनकर के अगर हल्के के लोगों की ऊपर उनकी बातों पे खरा ना उतरे तो लोग फिर उसको बदलने का मन बना देते। ऐसा अनेक लोगों के साथ में, अनेक लोग ऐसे थे जो MLA बने, दोबारा बने नहीं बने। दूर जाने की जरूरत नहीं है। चौटाला साहब ने यहाँ से MLA की टिकट दी थी, तस्वीर आपने जिताया था, जिताया था नहीं जिताया, दोबारा दाव हो गया कि कभी इसलिए दाम नहीं लगा दोबारा उसका कि वो तुम्हारी बात पे खरा नहीं उतर रहा। यमुनानगर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सोम नदी की क्षमता 10,000 क्यूसेस की है, जिसमें 24,000 क्यूसेस पानी आ गया, जिसके चलते गांव में पानी चला गया और खेतों में कई फुट पानी भर गया। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। वहीं लोगों ने बताया कि अचानक सोम नदी में पानी आया और गाँव में और लोगों के घरों में जा घुसा, जिससे काफ़ी नुकसान जो है हो गया। देखिए अभी बारिश जो है बहुत ज़्यादा हुई थी और इतनी बारिश अगर होती है तो पानी जो है, हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि कहीं पे पानी जो है उसका जो नेचुरल फ्लो है उसमें कोई अवरोध आए, कुछ आए तो उसको दूर करें ताकि पानी निकल जाए। और पानी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो उसको निकलने में टाइम लगता है, पर अभी जो देखा गया है तो ऐसे कहीं मेजर कोई अवरोध नहीं है कि पानी कहीं रुका हुआ है।
दो पंचायत के ऑफिसर्स हमारे हो गए, स्टाफ हो गया, रेवेन्यू के हो गए, इरिगेशन महकमा हो गया, तो लग के जहाँ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो पानी ये इंश्योर कर रहे कि जो पानी है अपने फ्लो से थ्रू निकलता रहे। और कुछ प्रोजेक्ट जैसे इस बार फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स लिए गए थे कंट्रोल के लिए, उसमें भी जो है कुछ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए थे वो भी आज देखने को मिले। और बट अभी प्रयास तो यही है कि कल की बात करूँ, कल के हिसाब से पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे गया और उम्मीद है अगर बारिश आगे नहीं होती है कुछ समय के लिए तो ये पानी जो निकल जाएगा। और बाकी अगर कुछ नुकसान फसल वगैरह का होगा तो उसके बाद एक बार आत्मा से किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अनाज मंडी में हुआ, जिसमें मुख्य रूप में सरदार गुरमात सिंह पहुंचे। इस बार उन्होंने कहा कि देखिए जो पूरा मामला है वहाँ साफ तौर पे उनका कहना रहा कि जो किसानों की इकट्ठा होकर उन्होंने सभी के ऊपर आरोप लगाए और कहा है कि देखिए हमारी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर नहीं सुना जा रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमलावर होते हुए कई सारी चीज़ें कही और ये कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के साथ खड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से सरदार गुरनाम सिंह पहुंचे। वहां हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया, साथ ही हजारों किसानों ने इकट्ठा होकर अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं सभा की अध्यक्षता कृष्णपाल सूडल ने की और कई राजनीतिक पार्टियों ने श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। सभी ने अपने विचार रखे हैं और सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए विरोध जाहिर किया। और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, एक सच्चा सुच्चा इंसान जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहा, बहुत कम इंसान दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं। और ये आज ही इसको हम श्रद्धांजलि सभा को संपूर्ण करने के बाद हमने भूलना नहीं है। सत्यपाल मलिक जी को हम हमेशा याद रखें, उसके बारे में उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं और उनसे प्रेरणा लें। कभी भी किसी पद की परवाह न करते हुए उन्होंने हमेशा सच्चाई की बात की, चाहे वो पुलवामा हमले के समय की बात हो या किसानों के साथ जो नाजायज हो रही थी उसकी बात हो या जवानों के साथ जो नाजायज हुई उसकी बात हो। हमेशा सत्यपाल मलिक जी ने ईमानदारी और सच्चाई से डटकर इन लोगों का खिलाफत की जो लोगों को दबाना चाहते थे, अपनी आवाज को बुलंद किया। इस बात के लिए सारा हिंदुस्तान उनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो फिलहाल के लिए हरियाणा और पंजाब की खबरों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।